Hello friends, how are you? So welcome to Code Curious YouTube channel. And today I'm going to start another tree actually. So let's see. Try data structure actually. Try data structure. So let's start. What is try data structure and why we need? Can we have any other means algo or any concept? So I can solve some problem using that, or it is some unique thing. Okay. So try actually it is mostly used for searching, and you have to surely, because this is different data structure, so means you have to arrange your elements or data into them that order only, specific order, and then your searching become very easy. Okay, so can we search any means searching means you have to, if you have to search any string, searching different type, like you have given some words. Okay, lot of words you have, and like you have a one single string str is equal to any string you can think, just like I can write here code key, yes, and some code curious, ऐसा कुछ लेना है मुझे कि इसमें, ओके मैं वर्ड्स लगते हैं, ठीक है। राजीव, अब कुछ ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, ठीक। राज राज कुमार, कुछ इस तरीके से आपके पास में स्ट्रिंग है, ठीक है। इट मीन्स यू हैव सम मल्टीपल वर्ड्स, these words actually in you can store into these try data structures, and if you need sometimes to search either like this words is exist or not, it is actually mostly I can say it is used like while searching for autocomplete also, I can say autocomplete. Okay, autocomplete feature you can implement autocomplete, like while you are searching in browser anything, and if you want something like to just I had written here simple curious, I'm going to return, okay, curious. So we started from CURI, then immediate it will show complete this is like just like a search bar, okay, and you return this one, so immediate it will search complete word curious. Okay, just like I can write here. Okay, auto complete feature, it is like this is search bar in Chrome browser, any browser, anywhere, not only browser, anywhere you have you need some feature to search element, okay, in your application. So there should be a text field search bar, and here you are searching anything, just you have to search any name. So जैसे ही आप राज लिखोगे, आर ए ही लिखोगे, तुरंत सजेशन में देने लगेगा आर ए से प्रीफिक्स में क्या क्या आ रहा है। सो आर ए से राजू आ रहा, राज आ रहा, कुमार राजकुमार भी आ रहा, ठीक है। जैसे ही आपने आर ए ही लिखा, यहाँ तक कि आपने जैसे ही आर लिखा, तो आर के करस्पॉन्डिंग जितने नेम है वो सारे यहाँ पे आने लगेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ही आप ए लिख दोगे, तो ए के थ्रू आने तीनों अभी भी आएंगे, ठीक। जे लिखोगे फिर भी तीनों आएंगे। अब जैसे ही आप जे के बाद में कोई वर्ड अलग डालते हो, जैसे के हमने डाल दिया, ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ राजकुमार है, ठीक, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई फीचर आता है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट एक्चुअली, सो देन यू कैन यूज this try data structure, or other word I can say, if you also need the complete word also you are going to search, then also it is easy. Just like I want to search Raju, so Raju, if you are complete, if you are searching complete word also, then also you can use try data structure if you need some feature to search complete word this way, not auto, it is means not, if you don't need autocomplete also, then also it is useful, ठीक है।
तो आप सोचोगे कि यार ये तो मैं और भी फीचर अदर भी जगह पे भी यूज कर सकता, अदर तरीका भी यूज कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज सिंपल स्ट्रिंग and you have to search string, and if you have lot of words, multiple words, so you can split by just assume you have some string and you can split. बट मोस्टली ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि जब आपके पास स्ट्रिंग हो, क्योंकि आप मोस्टली ये सर्चिंग फीचर ही लगाना चाह रहे हो, तो आपके पास कुछ कीवर्ड्स होंगे जो यूजर इंटर करता होगा, ठीक है, या कोई आपके स्पेसिफिक वर्ड होंगे, तो उन स्पेसिफिक वर्ड आपके पास में अलग से हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्ट्रिंग ही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लिस्ट ऑफ वर्ड्स, तो आप लिस्ट यूज कर सकते हो, या आप लिस्ट तो नहीं यूज करोगे, बट आप यूज कर सकते हो, हाई सेट यूज कर सकते हो, सेट डेटा स्ट्रक्चर। सेट में आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, यू कैन स्टोर these words into set, and you can simply search either it's under you can use contains method to search either key is present or not present, either this word is present or not present. Yeah, it's surely you can think on that approach also. It is also best approach, but but if you compare the time complexity for try data with try data structure and this data structure, actually try data structure will win in this case. Actually, why? Most people mostly you listen like a set for searching any element, it will take order of one complexity, because it use high score something. Okay, sorry, has code. This set implemented has means implemented has code, and calculate has code for any string, and then goes to bucket and search particular element directly. It is just like a array index searching. Okay, in array index searching only means order of one complexity you can get element. And here try data structure, how much time will take, because you have to compare one by one word. Okay, so here you have to like means you, if you want to search any words, just like Raju you wanted to search complete word, so you have to go from top to bottom complete Raju, तो order of n तो पूरा यहाँ पे ये हो ही जाना है मिनिमम, ठीक है। बट यहाँ पे इस जगह पे इन दिस केस सेट, यहाँ पे आप सोच रहे होगे ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, बट नहीं रहता एक्चुअली, बिकॉज ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नहीं रहता है यहाँ पे, एक्चुअली काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है थिंग्स। दिस इज वेरी सिंपल बिकॉज यू आर कंपेयरिंग सिंपल वर्ड्स ओनली, लेटर ओनली फॉर एनी वर्ड, एंड you are returning either is present or not present. But here actually you have to what you have to do, you have to calculate high score. This is very complex thing, because if you don't want any collision in any in your string, so you have to make some complex algo to generate this high score. So mostly you I have already means some problems I told you already, how to calculate high score, and some algos I have already, I think, yeah, a lot of algo I think, what well, so I don't remember actually currently. So algos just like to calculate a x square plus b x plus c, just okay, that way I written that that time. Robin Kopp something algo was there. That time I had compared means calculated the high score. Robin Kopp I think, I got remember, ठीक। तो उस समय क्या यहाँ पे इस टाइप से मैं कुछ आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से आपको यहाँ पे ये क्या है ए एक्स मतलब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी स्ट्रिंग है, उसको हम जैसे कि ये आपका इसका हाई स्कोर निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके इसके हाई इसका हम क्या स्काई वैल्यू लेकर के यहाँ पे उसके तरीके से पहले हम इसका पहले लेटर के लिए एक्स स्क्वायर करेंगे, या हम पहले लेटर के लिए स्क्वायर करेंगे, दूसरे के लिए केवल वन मल्टीप्लाई, तीसरे के लिए केवल कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, इस तरीके से मैंने बनाया था, ठीक है। कुछ 3 लेटर के लिए ये है। तो इस तरीके से आपको at least number first thing you have to traverse every element here also one by one, and because of you wanted to generate unique code, unique highest code actually,
सो कोलिजन ज़्यादा कम से कम कोलिजन हो तो उसके लिए आपको मिनिमम आपको ऑर्डर ऑफ एन तो चल चाहिए ही चाहिए। बट अगर कोलिजन आ जाता है तो आपको एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे लग जाएगी। और इसके अलावा इसकी जो लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि आप हाई स्कोर जनरेट करो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है काफ़ी सारा, एंड दिस विल आल्सो टेक टाइम समथिंग। ओके, क्योंकि समटाइम्स यू हैव टू मेक सम वेरी कॉम्प्लेक्स एल्गो सो टू जनरेट यूनिकोड। सो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, तो इस वजह से ये देखो आपको सामने दिख रहा है, ये क्लियरली ये विन हो रहा है, ठीक। तो इस और दूसरी चीज, जैसे कि आपको प्रीफिक्स सर्च करना है, इफ यू वांटेड टू सर्च प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऑफ एनी स्ट्रिंग, सो दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल हियर। ऑटो कंप्लीट फीचर, दिस इज नॉट अवेलेबल हियर, ठीक। एंड इफ यू वांटेड टू प्रिंट एनी these words, you have lot of words, like some you have some array of word, or or you have some string, words of string. So if you wanted to print these words into lexicographical order, then also it is not possible here. Okay, so this is very useful, that's why. Lexicographical order means if you wanted, just like you have some, this is only, so you wanted to print in order. So like this code, curious Raju, Raju, so I they start for or C, started from C O, एक्चुअली ये तो पहले ही आएगा, सेकंड आएगा ये, एंड इसके आफ्टर दैट RAJ, common in all three places, but here E, here A. So these order will be changed here. So that will be printed code, comma, curious, comma, RAJ will be printed first, Raj, then Raj Kumar, and then Rajiv. नहीं, राजकुमार नहीं पहले आएगा, पहले राजीव आएगा, ठीक है, क्योंकि के और ई में कंपेरिजन होगा ना, तो राजीव यहाँ पे पहले आ जाएगा और फिर राजकुमार आएगा। तो इस प्रकार से हम रेक्टिफाइड ऑर्डर में भी इसको इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज बेस्ड एक्चुअली। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट, हाउ टू डिजाइन दिस ट्राई डाटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज ट्राई डाटा स्ट्रक्चर, what is the use of this data structure, we have understand. Now start how it's appear, how it's look like. Okay, in visual. So just I can first, yeah, I can tell you how I can represent this data structure. And try actually means just like a tree only, a single node we will have, and this node have can have many, any number, means not any number of, some limited but multiple number of childs. Okay, but how many childs will be there, so I'll tell you later. So this way it can be represented. Okay, this way. These are nodes. First thing, these are nodes. Some one root will be there, then these root means should have any number of child, not any number, some limited number of, but more than two or three, ठीक है, number of childs, and these child also can have the own childs, this way, and this can have multiple childs, this. So it means we have any some nodes. So nodes, how I'll represent node actually here. Node, I already told you multiple times, like node need to create a class, and here, so here how will represent this particular node actually in try data structures. Try में क्या होता है कि क्योंकि बिकॉज आई एम इंसर्टिंग हियर वर्ड्स, and words means I'm assuming, for now assuming we have all the letters, characters actually, ठीक, I have alphabetical character only, not special character. I'm not if you are not assuming special character, any special character, so you can write this way.
you have some node and you can indicate here some array, char, not char array, int array. Array, and you have some here in other you can have some ind flag. Okay, I'm removing here. These two property variables we need here in particular node. Why we need actually? Because क्योंकि यहाँ पे जब कोई वर्ड्स होगा हमारा तो अप्रॉक्स ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ठीक. And I'm assuming in small letter or capital letter. You have to assume actually. You can take both a small and capital actually. And if it is no problem, I think a small if you have or capital you have, so you can handle this condition actually. But I'm assuming you have some either you have a small letter or capital letter. So this way, if you have words is letters, because in alphabetical we have 26 only, ठीक alphabets. सो 26 मीन्स ये जो हमारा रूट है, एनी नोड यू नॉट ओनली रूट और नोड, एनी नोड इन द ट्री मीन्स एट मोस्ट यहाँ पे कितने होंगे, कितने करेक्टर हो सकते हैं, केवल 26 ही करेक्टर हो सकते हैं एट मोस्ट, मैक्सिमम. रूट पे भी मैक्सिमम 26 हो सकते हैं, यहाँ किसी भी नोड पे मैक्सिमम 26 करेक्टर ही हो सकते हैं, किसी भी नोड पे चाहे पूरी इतिहास लिख डालो, ठीक है, उसमें भी वो कितने होंगे, केवल 26 ही करेक्टर होंगे. उसी 26 करेक्टर का यूज करके मल्टीपल कॉम्बिनेशन का यूज करके हमारे पास में क्या मल्टीपल करेक्टर का कॉम्बिनेशन बना करके हम कोई ना कोई वर्ड बना रहे होंगे, ठीक है. तो इसका मतलब है इस अगर हम नोट स्टोर करना चाहिए, करेक्टर हमें स्टोर करना चाहिए, मान लो हमें राजू स्टोर करना था, ठीक. Let's see, I have to store Rajiv, this Rajiv. So I have to store character because I have taken here integer. So you can convert this character, I wanted to store this character r into this place. Actually मुझे यहाँ पे कुछ अलग ट्री बनाना चाहिए था, बट एक काम करता हूँ, इसको रिमूव करके हम दोबारा ट्री बनाते हैं, क्योंकि हमें अगर प्रॉपर बताना है तो यहाँ पे थोड़ा नोड का जो है बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक. एक साइड हम समझाएंगे, एक साइड ट्री बनाएंगे. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास नोड है एक, इसको भी हम थोड़ा साइड में करते हैं, ठीक. तो हमारे पास में क्या है, एक नोड है और यहाँ पे हमारे पास में इंट एरे है एक्चुअली, ठीक, क्या है, एरे है. और यहाँ पे इज इंड हमने ले रखा है वेरिएबल. यहाँ पे और भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है. यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो इनिशियलाइजेशन के लिए. तो अल्फ़ाबेटिकल मैंने बोला ए बी सी डॉट 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 जेड तक है हमारे पास. सो इफ लेट्स से आई हैव सम वर्ड्स एंड आई कैन एज्यूम हियर, जैसे कि आपके पास में गी गी है ना, कुछ अलग अलग तरीके से कॉमन लेते हैं, गीक्स, these words you have, okay, and other word you have some wide, sorry, wide and bat and cat, ओके, एंड यू हैव डॉग आल्सो कैट के साथ में है ना. तो इस प्रकार से आपके पास में कुछ वर्ड्स हैं दैट यू वांटेड टू स्टोर इनटू ट्राई डाटा स्ट्रक्चर टू मेक इजी फॉर सर्चिंग, ओके. तो यहाँ पे सो लेट्स से ये बिकॉज यू हैव आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक वी how it's look like, so it is just like tree only, we have some nodes and I have some childs and nodes some special data structures. So here if you want to store, because if
this is these words you have and you wanted to insert into try data structure and you wanted to create try data structure. So first thing आपके पास में एक नोड होगा, ठीक। और यहाँ पे आपके पास एक नोड, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं श्योर, आपको पता है। एक तो आपके पास में इज इंड है, या तो फिर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ये किस टाइप का है, यहाँ पे ये हम कैर टाइप का मान सकते हैं, ठीक। कैर का क्यों माना, क्योंकि ये या तो फिर वाई होगा या तो फिर एन होगा, यस होगा या फिर नो होगा। एस मीन्स इज इंड और नो मीन्स नो, अभी इंड नहीं हुआ है, ठीक है। एन मीन्स, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, सॉरी, तो अभी यहाँ पे फाल्स ही होगा क्योंकि इंद्र नहीं हुआ है। तो एक करेक्टर आपके पास में यहाँ पे है। एक्चुअली एक फर्स्ट मैं नोड एक आपको बता देता हूँ कैसा बनेगा। तो यहाँ पे ये जो नोड है, ठीक है, ये जो नोड है यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, एक एरे आएगी, ठीक। ये एक एरे हो गई। एरे में कुछ इंडेक्सेस होंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5 यू हैव, एंड यू हैव सम इंड, इज इंड वेरिएबल, इज इंड वेरिएबल। अब you now you wanted to store this gig word. I told you every, actually यहाँ पे every node only only will store one character for any word। कोई भी वर्ड होगा उसका केवल एक ही करेक्टर स्टोर करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गीक जो है पूरा पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे स्टोर कर देंगे, नहीं। ओनली वन करेक्टर आई विल स्टोर फॉर दिस वर्ड इन दिस, ओनली इन अ पर्टिकुलर नोड। तो यहाँ पे गीक में पहले गीक को स्टोर अगर करना है तो हमें क्या करना है, लूप चलाना पड़ेगा, एंड आई हैव टू पिक दिस करेक्टर एंड आई हैव टू स्टोर हियर। तो यहाँ पे स्टोरिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि ये जो गीक है, गीक में जी को अगर हमें यहाँ पे स्टोर करना है, इफ यू वांटेड टू स्टोर दिस जी हियर is in this node, so you have to actually add here in this index, because you have array only, and array it is int type array, so you can't store means g in directly here in this place, okay। this correct g character can store, you can't store actually in any index place in array। so what you have to do, g को आप कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर में, कैसे, ये g करेक्टर है माइनस a करेक्टर, I will always subtract a from g। बट यही इसीलिए मैंने बोला था कि अगर इफ यू हैव एक्चुअली some capital letter also in your string, so you have to manage that way, so you have to identify this character is small or capital, so that way you can take a if else, if character is small then you can use this way, and otherwise you can use this way। if character is capital, so you can use, जस्ट लाइक ए जी था हमारा, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जी यहाँ पे है। मान लो जी अगर कैपिटल में है तो जी माइनस, फिर इस आपको कैपिटल ए ही करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ इसकी स्काई वैल्यू स्मॉल की कैपिटल की अलग होती है, ठीक है। इसकी लगभग में 90 to 122 होती है, 96 या 92 से 122 होती है, ठीक। और इसकी होती है काफ़ी 64 से कम समथिंग होती है यहाँ की, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रेंज लानी कितनी, 0 से 25 तक की रेंज ही लानी है इंडेक्स की, क्योंकि यहाँ पे जो एरे है ये 0 से 0 1 2 3 ... 25 तक मैक्सिमम इसकी इंडेक्स होगी, ठीक है। दैट्स वाई आई एम हियर सब्ट्रैक्टिंग। अदर वे यू कैन आल्सो do a different way, like using by using 256 character, means if you are taking here length of this array and you are creating array, just like here I have to create array is equal to new int। यहाँ पे आप साइज 26 भी दे सकते हो, 256 भी दे सकते, 256 भी दे सकते हो, ठीक। अगर आपको सारे करेक्टर यूज करने हैं, कीबोर्ड में जितने भी करेक्टर होते हैं सारे अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट्स एंड सब स्पेशल करेक्टर्स, तो उसको सभी को ज्यूम करना, तो आप वहाँ पे 256 करेक्टर का यहाँ पे लेंथ ले सकते हो, ठीक है। तब आपको ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा एक्चुअली। तो अब हमारे पास जैसे कि जी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यू निकल के आएगी, मान के चलते हैं जूम में करके। वैसे तो मैं
अप्रॉक्स आएगी 7 और 6 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं 7 आ रही है, ठीक। तो 7 मीन्स यहाँ पे अभी हम एज्यूम करके चलते हैं कोई भी अदर वैल्यू आती है, मान लो 4 आती है, ठीक। 4 आती है तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे हमें स्टोर करना। अब क्या स्टोर करेंगे? बिकॉज आई यू नो आई कैंट स्टोर हियर दिस करेक्टर एक्चुअली बिकॉज दिस इज इन टाइप। इट मीन्स आई व्हाट आई विल डू, ओके, एक काम करते हैं, यहाँ इंट टाइप नहीं लेते हैं, ठीक है। मैंने गलत बोला था, क्योंकि ये रेफरेंस हम यहाँ पे इंट टाइप नहीं, यहाँ पे रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस किसका होगा? नोड का। न्यू इंट नहीं, न्यू नोड, सॉरी। तो यहाँ पे नोड अगर यहाँ पे है तो करेक्टर नहीं स्टोर कर सकते। इट मीन्स व्हाट विल डू, यू विल स्टोर, यू विल क्रिएट न्यू नोड एक्चुअली। यहाँ पे आप 4 आया यानी कि 4 पे ऐसा करके आप एक और नोड क्रिएट कर दोगे, ठीक। यहाँ पे भी वही एरे भी होगी, यहाँ पे भी एरे होगी, और यहाँ पे भी इज इंड होगा, ठीक। और ये जो करेक्टर ये जो बनाया है आपने, एक और चाइल्ड बना दिया इसका, क्योंकि फोर्थ प्लेस पे अभी एम्प्टी नहीं रहा, क्योंकि अब वहाँ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, क्लास लेवल है कि क्योंकि नोड है क्लास टाइप का है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यहाँ पे नल होगा। बट अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्टोर कर दिया, एक चाइल्ड, एक और नोड स्टोर कर दिया इस प्लेस पे। इट मीन्स यू कैन एज्यूम लाइक यू हैव स्टोर्ड दिस करेक्टर हियर। तो ये हमारा जी करेक्टर हो गया इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये जो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम एक्चुअली करेक्टर नहीं स्टोर कर रहे, यहाँ पे हम अगर कोई करेक्टर एग्जिस्ट करता है इस इंडेक्स पे, अगर किसी भी करेक्टर की वैल्यू ए से डिफरेंस करने के बाद अगर 4 आ जाती है, तो इट मीन्स इन फोर्थ इंडेक्स आई विल स्टोर क्रिएट एन अदर नोड एंड स्टोर दिस एड्रेस। आई विल स्टोर एड्रेस ऑफ न्यू नोड हियर एक्चुअली। एड्रेस कर यहाँ पे स्टोर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लिंकिंग करेंगे। यहाँ पे हम करेक्टर कोई कोई भी करेक्टर कहीं वर्ड स्टोरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता है तो हम नया एक नोड क्रिएट करेंगे, उसका एड्रेस उसी प्लेस पे स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे नॉट नल मीन्स जी करेक्टर एग्जिस्ट हियर। एंड इसी प्रकार ई भी करना है, तो यहाँ पे मान लो ई का कोई वैल्यू आ जाती है, ई -a करेंगे, तो लेट से आई हैव सम 3, any value will become assuming 3 only, so because इंडेक्स हम इतनी सारी बना नहीं सकते ना यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 आता है जैसे ही, तो थर्ड इंडेक्स पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली थर्ड इंडेक्स पे एक नया नोड पहले क्रिएट करोगे, और नया नोड क्रिएट करके थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक एरे होगी। तो इस तरीके से एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ट्राई डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। ये मैंने बड़ा नोट बनाया था क्योंकि समझाने के लिए, बट अब हम लोग डायरेक्टली बनाए पूरा जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सही से बनाते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट प्रॉपर ट्राई ओके स्ट्रक्चर यार। So you have one node in the beginning. You have to create your node, and is that in the beginning it will be empty only, not empty. It was not empty because यहाँ पे एरे का साइज तो लेना ही पड़ेगा ना। इसी प्रकार कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आप इतना साइज ले रहे हो, जबकि आपके हो सकता है यहाँ पे काफ़ी 26 में 2 ही करेक्टर स्टोर कर रहे हो, ठीक है, या 5 करेक्टर ही स्टोर कर रहे हो, बट फिर भी आप 26 ले रखे हो, तो वहाँ पे आप डेटा स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन, ठीक है। आप यहाँ पे कोई सेट वेट भी यूज कर सकते हो, या आप या लिस्ट भी यूज कर सकते हो। लिस्ट तो नहीं, सेट यूज कर सकते हो और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे यू हैव सम नोड, यू हैव सम इंड वेरिएबल, इंड मीन एज इंड मीन्स एट स्टार्ट में एज इंड फॉल्स ही होगा। और यहाँ पे आपको अब ये हमारा स्टार्ट में क्या रहेगा, एक देखो यहाँ पे पहले हम लोग जब ट्री बनाते थे तो वहाँ पे एक नोड जब बनाते थे तो वहाँ पे पहले नोड पे कुछ ना कुछ डेटा फिल करते थे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल करके 2 या 3 कुछ 4 ऐसा करके हम पास करते थे जब हम लोग नोड बनाते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपने एम्प्टी नोड बना रखा है। एम्प्टी क्या मतलब, एरे के साथ में, और यहाँ पे इज इंड आपने फॉल्स डाल दिया एट द बिगनिंग। आफ्टर दैट
इज इन आपने फॉल्स डाल दी। अब नाउ यू हैव टू सी एंड यू आर इटरेटिंग जस्ट लाइक हियर यू हैव सम फॉर लूप एंड स्टार्टेड फ्रॉम इंडेक्स 0 आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एस टी आर डॉट लेन, ठीक, एंड आई प्लस प्लस। तो ये यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ith इंडेक्स पे आप करोगे एस टी आर डॉट कैरेट कैरेट ith इंडेक्स। ये जो कैर आएगा ith इंडेक्स पे माइनस कर दोगे ए से, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। अब हमारे पास जब इंडेक्स आ गया तो उसी इंडेक्स पे, ठीक है, हमारे पास में एक बेस पे हमने एक नोड क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी से, ठीक है। जस्ट लाइक आई कैन से आई हैव सम करंट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। अब यहाँ पे जो हमारे पास करंट नोड है सी यू आर करंट डॉट डॉट, यहाँ पे आप यहाँ एरे आपने मैंने ले रखा है तो कुछ कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एरे करेंगे, एरे जो हम करंट डॉट एरे कर रहे हैं इसके, क्योंकि ये एरे टाइप का है तो यहाँ पे कोई भी इंडेक्स है, यहाँ पे जो भी इंडेक्स है इंडेक्स, इस इंडेक्स पे पहले तो आप कंडीशन के थ्रू चेक करोगे आइदर इज नल और नॉट नल। अगर इट इज ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हालांकि मैंने थोड़ा ऊपर से करना था जगह मिल जाता, बट मैं ये अभी चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज्यूम करो ये एम्प्टी है ये इंडेक्स पे, यहाँ इस करेक्टर एरे में या नोड एरे में यहाँ पे एम्प्टी नल नल वैल्यू है इस इंडेक्स पे, कोई अभी करेक्टर नहीं डाला था, तो आप डायरेक्टली फिर न्यू नोड क्रिएट करके यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा इज इंड वैसे भी जावा में क्लास लेवल वेरिएबल फॉल्स ही असाइन करता है, तो यू डोंट हैव टू असाइन, ठीक है। मैं सो यहाँ पे आपने क्या किया, न्यू नोड क्रिएट मीन्स यू हैव क्रिएटेड नया नोड, यहाँ पे न्यू नोड आपने क्रिएट कर लिया विद फॉल्स एंड किस करेक्टर के लिए, जी करेक्टर के लिए। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, ई करेक्टर के लिए करना पड़ेगा, जी के बाद में ई आ रहा है तो ई के लिए भी कर देते हैं, चलो ई भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फॉल्स रहेगा, ये ई करेक्टर हो गया। फिर एक बार ई और है तो यहाँ पे फिर हम ई एक नोड बनाते हैं लिंक, ई करेक्टर हो गया। इसी प्रकार से फिर गीक्स आता है, यहाँ पे इज इंड आ गया। इज इंड क्या है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे इंड हो चुकी, अभी मैंने ये सारी स्ट्रिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, जब लास्ट में हम लोग जाएंगे तो ये जो नोड हमारा होगा, इसको हम नीचे ले जाते हैं, थोड़ा जगह मिल गई हमारे पास। एक काम करें, क्यों ना हम यहाँ पे प्रॉपर लिख दें, हमारी जगह स्क्रॉल करके मिल ही गई है जब हमें। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट आपने क्या चेक करना पड़ेगा, जो भी आपके पास में करंट नोड है सी यू और डॉट एरे के इंडेक्स प्लेस पे यू हैव टू चेक नॉट इक्वल टू नल, नहीं इक्वल टू नल, अगर ये इक्वल टू नल है, ठीक, then only you have to create new node, otherwise no need to create node, then only you can store current dot array array index is equal to new node, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये इज फॉल्स फॉल्स ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू, अगर इफ इट इज नल, इफ इट इज नॉट नल मीन्स यू हैव सम चाइल्ड ऑलरेडी एंड यू हैव टू डू करंट इज इक्वल टू करंट इंडेक्स, वो जो हम करते पी टी आर इज इक्वल टू पी टी आर डॉट नेक्स्ट, सेम वे हियर आल्सो यू हैव टू डू करंट इज इक्वल टू करंट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है उसके जो भी करेक्टर आपके पास में था उसी करेक्टर के फिर नेक्स्ट में जाना आपको है, क्योंकि नया नोड आपने क्रिएट कर दिया तो भी नेक्स्ट मिल गया आपको,
और अगर आपने नया नोड नहीं क्रिएट किया है, पहले से था, तो भी आप उसके नेक्स्ट करेक्टर पे जाओगे, ठीक है, उस इंडेक्स पे। तो इट मीन्स यहाँ पे डॉट करंट, करंट इज इक्वल टू करंट, ओके, डॉट एरे मुझे करना था ना पहले, डॉट करंट कोई एरे नहीं है ना, करंट डॉट करंट एक वेरिएबल है, करंट डॉट एरे इंडेक्स, इंडेक्स किया, और यहाँ पे इसके क्या आएगा, इस इंडेक्स पे जो भी नोड होगा, एड्रेस का नोड होगा, वो यहाँ पे आसान हो जाएगा। मीन्स अब हम लोग इस नोड पे आ चुके हैं, ठीक, किस नोड पे, यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगर मानते हैं कि एज्यूम करो कि यहाँ पे ये एंड हो चुका है, मीन्स ये लूप हमारा जो स्टार्ट हुआ था, लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ तो लूप एंड हो चुका है, ठीक। जब लूप एंड हुआ होगा, एक हमारे पास करंट नोड होगा, एक चीज मैं और बताऊं, एक आप करंट नोड को हैंडल कर रहे होगे, और एक आपके पास में ऑलरेडी एक वेरिएबल होगा जो कि बताएगा रूट नोड। रूट नोड का रेफरेंस आप कभी भी यहाँ पे लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे रूट ये जो है हमेशा रूट नोड को रिफर करेगा। तो इट मीन्स व्हाइल यू आर डूइंग योर इंसर्शन एनीथिंग, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्चुअली असाइन क्रिएट योर नया नोड यहाँ पे, और करंट इज इक्वल टू यू हैव टू असाइन रूट नोड, इस तरीके से, ठीक। क्योंकि ये रूट नोड जो रूट ट्री के रूट को रिफर कर रहा है, इसको हम लॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। सो नाउ आफ्टर एंड ऑफ दिस लूप व्हाट विल डू, बिकॉज ये करंट जो है आपके लास्ट नोड को रिफर कर रहा है, एंड स्ट्रिंग कंप्लीटेड, देयर इज नो करेक्टर नाउ, सो यू कैन एक्चुअली स्टोर हियर करंट डॉट, जो भी करंट है आपके, तो करंट जो हमारा है करंट डॉट इज इंड, इज इंड इज इक्वल टू, ये करेक्टर आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक। और ये मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो भी मेथड बना होगा यहाँ पे इंसर्ट मेथड होगा, ठीक। स्ट्रिंग, ये एस टी आर आया होगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक। हालांकि मैंने पूरा स्पेस तो कवर कर लिया है कोड से ही, तो बट ये मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो इसको बताने का मेरा मकसद था कि जैसे कि आप इजीली अब अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि कोड अगर पता चल जाता है, कोड से हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इंड चूंकि हो चुका था हमारा, तो यहाँ पे फॉल्स की जगह अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये करेक्टर इंड हो चुका है, ठीक। इसके बाद में हमें गीक स्टोर करना है, फिर गी था पहले, गीक था, अब गीक करना, के और स्टोर आ गया, एक और वर्ड आ गया जिसमें के एक्स्ट्रा है। तो बाकी सारे तो सभी एग्जिस्ट करते ही हैं, बट इसके ई के बाद में इसका एक और चाइल्ड हमें बनाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे ये चाइल्ड हमारा बन गया के लिए, बट यहाँ पे भी क्या हुआ, ये इंड हो चुका है, तो यानी कि ये इंड हमारा ट्रू है। हियर आल्सो यू हैव ट्रू, हियर आल्सो यू हैव ट्रू। नाउ यू हैव गीक्स अनदर एस आल्सो एक्स्ट्रा, ठीक। तो यहाँ पे आप एक और चाइल्ड बनाओगे, और यहाँ पे आप ट्रू डाल दोगे, ठीक है। और ये हमारे एस के लिए हो गया। इसी प्रकार बिकॉज एंड न्यू स्ट्रिंग you are inserting, now you are going to insert byte actually b is different character, this is not exist here, b is not exist in root, this is null, because here geeks while I was doing actually, so for geek और geeks तीनों के लिए क्या था, जी हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, तो हमने सेम यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको कोड इसीलिए मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, जो बिकॉज इफ दिस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स हमने जनरेट किया है इंडेक्स इस करेक्टर के थ्रू, अगर इफ इट इज नॉट, इट इज नल, देन ओनली आई एम क्रिएटिंग न्यू नोड इन इंस्टेंट, अदरवाइज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इट सिंपली पी टी आर टेंस टू पी टी आर डॉट नेक्स्ट, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, पी टी आर इक्वल टू पी टी आर डॉट नेक्स्ट, इसमें जा रहे हैं, फिर इसमें जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे बी चूंकि बिकॉज दिस इज बी इज करेक्टर बीथ इंडेक्स एक्चुअली
there is no value address or any value any child. Okay, so means I have to create another child here. So for b I need to create for false, and b I have created, and then a b के बाद में a हमारे पास, क्योंकि ये जो एरे है यहाँ पे कोई एथ इंडेक्स पे कोई भी करेक्टर चाइल्ड नहीं है, तो इट मीन्स आई हैव टू क्रिएट न्यू चाइल्ड, एंड आई विल क्रिएट न्यू चाइल्ड फॉर ए false, and similarly I need to create d new child, d for d, ये फॉर ए है। अब डी चूंकि एक स्ट्रिंग हमारी इंड हो चुकी है, तो लास्ट में हमें इसी पे क्या करना है, इज इंड कर क्या करना है, इज इंड हमारा ट्रू हो चुका है, ठीक। तो हम इसको ओवरराइट मार देंगे बाद में। इसी प्रकार से बाइट करेंगे तो बी हमारा रूट, हमेशा रूट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रूट इसीलिए मैंने बोला ना, इसको लॉस नहीं कर सकते हैं, ये हमारा रूट को ही रिफर करेगा ऑलवेज। तो यहाँ पे रूट पे आएंगे, बी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बीथ इंडेक्स पे चाइल्ड एड्रेस एग्जिस्ट करता है, मीन्स आई हैव टू गो दैट नोड ओनली। इस नोड पे आ गए, चेक करेंगे ए आइदर ए इंडेक्स पे कोई एग्जिस्ट करता है नोड, यस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, and now in this node I'll check either teeth index पे कोई either is null or not null, so here you'll get null actually, because आपने d स्टोर किया था बट t के लिए कुछ स्टोर नहीं किया, तो यहाँ पे एक और चाल बना दो। पहले तो फॉल्स जाएगा, ये टी के लिए है, और इसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ओवरराइड कर दोगे, क्योंकि इंड है ये, तो यहाँ पे ओवरराइड करके हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉल्स को हम ट्रू कर देंगे, ठीक। सिमिलरली फॉर द कैट, बिकॉज सी करेक्टर हैज नॉट बीन स्टोर्ड हियर एनी बिफोर, ओके, सो लेट्स सी क्रिएट child for c also, here false, and false हो गया c के लिए, and a there is no child already exist here for eighth index, so let's say create here नया node for a false, and again create नया node for t, because this is end, so I'm directly writing here to, ठीक, t के लिए ये। इसी प्रकार आप कैट के बाद डॉग भी स्टोर कर सकते हो, अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, काफ़ी काफ़ी टाइम हो जाएगा क्योंकि, ठीक है। So now I have created this try data structure using all these words. Okay. Now my task is to search. I need to search something. So search के लिए क्या करेंगे? I'll start from similarly I have to do for searching also. As I have inserted, same way I have to start beginning from for searching, means I have to loop this character and I need to search for geeks में g search करेंगे, either g exist here, yes g exist करता है, let's say I have some word to search, मेरे पास में गी है और गीक्स भी है, दो वर्ड ये हो गए, और एक हमारे पास बी ए है, I have to search and I have to search CA, ठीक। ये तीन वर्ड या CAT कैट पूरा ले लेते हैं, तीन वर्ड हमें सर्च, चार वर्ड से हमें सर्च करने। सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम बी गी, गी के लिए मैंने पहले फर्स्ट आई नीड टू चेक आइदर जी इंडेक्स पे यहाँ पे कोई आइदर इज नल और नॉट नल, यस इट इज नॉट नल, सो मीन्स देयर इज अ चाइल्ड फॉर जी ऑलरेडी एग्जिस्ट हियर, so let's go to that child, I comes to here now, and I'll check for each index either is there is a value or it is null only, so there is a value, so I'll go to this child, and again I'll check either each index in this node array either there is a address or not, yes address I have for e, again I'll go to here, and बिकॉज ये जो लूप होगा, अब इसके बाद में ये लूप इंड हो जाएगा, क्या होगा, ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसका कोड भी लिख देता हूँ यहाँ पे,
लेट्स से यू आर गोइंग टू सर्च स्ट्रिंग str, ठीक है। जो हमारे पास में नोड होगा, एक नया नोड क्रिएट कर लेंगे। जस्ट अब जैसा कि हम लोग ये लिस्ट को इटरेट करने के लिए ptr क्रिएट कर लेते थे, सेम वे यहाँ पे भी हम ptr ही वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। ptr इज इक्वल टू रूट नोड, ये क्लास लेवल वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये स्ट्रिंग है, बिकॉज आई हैव टू सर्च दिस स्ट्रिंग। सो लेट्स इटरेट फॉर int I is equal to 0, I less than str dot length और I प्लस प्लस, एंड आई नीड टू कैलकुलेट इंडेक्स, सेम जैसा कि ऊपर किया है सेम वही है, कुछ भी चेंज ज़्यादा नहीं है। इंडेक्स सॉरी इंट ind इज इक्वल टू str डॉट कैरेट ith इंडेक्स, मुझे इंडेक्स मिल गया। लेट्स नाउ चेक आइदर करेक्टर एग्जिस्ट और नॉट। इफ ptr dot array index not equal to, or I can say if it's equal to null, then I'll return directly, क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे false, this string is not exist boolean, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम इट मीन्स दिस बिकॉज दिस करेक्टर्स जो कोई भी है, मान लो जी था, जी के इंडेक्स पे, उस एरे में जी के इंडेक्स पे कोई भी एड्रेस यानी कि चाइल्ड नहीं है, इट मीन्स जी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, देन इट मीन्स आई डोंट मीन्स ट्राई डाटा स्ट्रक्चर डजंट कंटेन दिस स्ट्रिंग कंप्लीट स्ट्रिंग, ओके। रिटर्न अदरवाइज, अब क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया है, ठीक है, तो अदरवाइज की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे जो भी होगा सब अदरवाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा हम क्या करेंगे, अगर इट मीन्स इट एग्जिस्ट, यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें ये एग्जिस्ट करता है, तो ptr जो हमारा है, ptr इज इक्वल टू, यहाँ पे ptr इज इक्वल टू सेम वही कर देंगे, ptr डॉट नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ptr डॉट एरे इंडेक्स, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार सिमिलरली वी विल डूइंग मीन्स कीप चेकिंग हियर फॉर ईच करेक्टर आइदर चाइल्ड एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखना जो लास्ट में आएगा करेक्टर, ठीक है, या अगर वो सारी स्ट्रिंग या कंप्लीट, मान लो ये आपने कंप्लीट कर सर्चिंग कर ली है यहाँ पे, ठीक, इट मीन्स आपने सारे करेक्टर्स को चेक कर लिया है, ठीक। इट इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स दिस स्ट्रिंग इज एग्जिस्ट हियर। तो जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप डायरेक्टली रिटर्न लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, क्योंकि आपको चेक करना ही नहीं है इंड है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिंपली हम रिटर्न ट्रू कर देंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग ये कंप्लीट। अब यहाँ पे हो सकता है अगर यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, इसके बीच में हमने इसीलिए रिटर्न करवा दिया था यहाँ पे नल, ठीक है, रिटर्न फॉल्स करा दिया था, तो इसका मतलब ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सर्चिंग करेंगे, ठीक। गीक में जाएंगे तो जी एग्जिस्ट करता है, ई का भी चाइल्ड है, जी में ई का भी चाइल्ड है, और ई में फिर से ई का चाइल्ड है, एंड जैसे ही हमने ये पूरा सर्चिंग कंप्लीट कर दिया, हम रिटर्न कर देंगे। हम ये नहीं चेक करेंगे आइदर इज इंड और नॉट इंड, नहीं इंड नहीं भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, जो हाँ अगर मुझे प्रीफिक्स सर्च कर, सॉरी हाँ मैं एक चीज़ में भूल रहा था कि अगर ये इंड नहीं है, यहाँ पे इंड ट्रू फॉल्स है, तो इट मीन्स दिस वर्ड एक्चुअली नॉट प्रेजेंट बट प्रीफिक्स इज प्रेजेंट, ओके। प्रीफिक्स सर्चिंग में तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ठीक, ये चीज़ मैं भूल रहा था। अगर आप प्रीफिक्स सर्च कर रहे थे
तो तब तो ये सही है, ठीक है। अगर प्रीफिक्स आप सर्च करें तो फिर आप डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर सकते हो। बट इफ यू आर नॉट सर्चिंग फॉर प्रीफिक्स, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक आइदर इट्स इंडेड और नॉट। जो हमारे पास पीटीआर है, लास्ट में जो पीटीआर है, तो आई यू हैव टू चेक एक्चुअली यार, इफ पीटीआर डॉट इज इंड इज इक्वल टू ये है या नहीं है। अगर ये y है तब आप रिटर्न करोगे ट्रू, अदरवाइज फिर से वही है कि रिटर्न आपको फॉल्स ही करना पड़ेगा, ठीक। इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो लास्ट इंड था यहाँ पे टी आ रहा है, तो मतलब ये ट्रू है, इंड हो चुका है वर्ड, इसका मतलब ये कंप्लीट वर्ड हो चुका है, ठीक है, हमारा सर्च। इफ यू वर सर्चिंग फॉर प्रीफिक्स ओनली, देन यू उसके लिए भी आपको अगर मान लो ऑटो कंप्लीट फीचर कुछ करना था, ठीक है, लेट्स से यू हैव टू कंप्लीट सम डू सम ऑटो कंप्लीट फीचर। ऑटो कंप्लीट में क्या, जैसे कि आपके पास में जी आ जाता है या जी ई आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब जैसे आपने जी करेक्टर प्रिंट किया तो जी आपने देखा यहाँ पे रूट में जी था, इसके नीचे जितना भी ट्रू हैं, जितने भी ट्रू हैं वो सारी ट्रू के लिए आपको वर्ड मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्रू हैं, एक दो तीन ट्रू हैं, इस इट मीन्स थ्री वर्ड्स आई हैव हियर, तो ऑल थ्री वर्ड्स यू कैन रिटर्न हियर, ओके। इसी प्रकार जी ई जैसे ही मैंने किया, जी ई मीन्स जी एन ई आफ्टर ई हाउ मैनी ट्रू यू हैव, थ्री ट्रू, इट मीन्स यू हैव टू रिटर्न जी ई ई आफ्टर जी ई ई हाउ मैनी ट्रू यू हैव आफ्टर जी ई ई। अब आफ्टर मीन्स ये प्रीफिक्स में आ रहा है, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दो तीन, अभी भी तीन आ रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रीफिक्स क्या ऑटो कंप्लीट फीचर भी इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। प्रीफिक्स सर्चिंग में आपको यहाँ पे चेक लास्ट में नहीं करना है कि लास्ट नोड आइदर इट्स हैव ट्रू और नॉट, बट फॉर कंप्लीट वर्ड सर्चिंग यू हैव टू चेक आइदर इट्स ट्रू, लास्ट वर्ड इज ट्रू और नॉट ट्रू, ओके। Similarly, we can do searching for we can do searching for by ba. So b, because b character exist here, and in b इस नोड में, बी के नोड में हमारे पास में ए का इंडेक्स नॉट नल है, तो इस मीन्स यहाँ पे जाएंगे। और चूंकि बी ए हमें पूरा वर्ड, यहाँ पे अगर आप ये एज्यूम कर रहे हो कि बी ए हमारा पूरा वर्ड है, ए पे हमारे पास में बिकॉज इट इज़ फॉल्स हियर, इट मीन्स इट डजेंट एग्जिस्ट। यहाँ पे बी ए आप चेक कर रहे होगे, ठीक है। चलो यहाँ पे चलते हैं सर्चिंग में। आप में यू हैव बी ए स्ट्रिंग एंड इन दिस रेटिंग बी ए लिस्ट, सॉरी बी ए स्ट्रिंग इट रेटिंग वन करेक्टर वन बाई वन, एंड फॉर फर्स्ट बी करेक्टर कैलकुलेटर इंडेक्स चेक्ड आइदर चाइल्ड एग्जिस्ट पीटीआर। ये जो पीटीआर में मैंने रूट नोड डाल दिया, रूट नोड में आइदर इट्स नल और इस इंडेक्स पे नल है और आई हैव समथिंग, यस बिकॉज आई हैव समथिंग सो आई एम गोइंग नेक्स्ट। तो ए के वहाँ पे हम बी के नोड पे चले गए। अब बी के नोड पे जो एरे हमारी बनी है वहाँ पे फिर ए नेक्स्ट कैरेक्टर बिकॉज आई हैव ए, सो फॉर ए के लिए इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास जो बी का नोड जो था उसमें जो एरे है उसमें हम चेक कर रहे हैं क्या उसके एरे में इंडेक्स कोई उसका चाइल्ड है या नहीं है, या आई हैव चाइल्ड हियर, सो पीटीआर नेक्स्ट कर देंगे। अब हम चले यहाँ पे, अब हम ए के नोड पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम ए के नोड पे आ जाएंगे और चूंकि हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी ये, क्योंकि मैं बिकॉज आई हैड ओनली टू वर्ड हियर ओनली, सो इट्स लूप हैज बीन इंडेड हियर। और अब लास्ट में हम आएंगे, बिकॉज इफ पी टी आर डॉट इज, अब एक पे हमारा पी टी आर डॉट इन हमारा वाई है ही नहीं, यहाँ पे टी है, इट मीन्स इट्स नॉट ट्रू। तो ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो ये लास्ट में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक। ये सिंपल सा केस, इसी प्रकार सिमिलरली यू कैन थिंक फॉर कैट आल्सो। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हम डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, डिलीट में थोड़ा कम टाइम भी लगने वाला है, that's why I will not cover in this lecture. So
इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।